Okay, students, let us continue the lesson. Have you any problem regarding the lesson? Students, on your videos also? Everybody on your video? Satyam, Ravi, on your video? Students, today we have to study decentralization in India. Okay, let us continue the lesson and also discuss about the different type of power sharing on the local level. That means in the urban areas also and in the rural areas also. What happened after the 73rd constitutional amendment? How the Panchayati Raj system was effectively started in our country. Let us continue the lesson. We noted above that federal government have 2 or more tiers of government. Students, हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक सरकारें की जो स्तर है वो होती है, यानी कि लेवल्स, टीयर्स कितने होते हैं? 2 or more than 2. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country. और हम लोगों ने 2 tiers of government के बारे में डिस्कस भी किया. कई तरह के कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरेशन के रूट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. लेकिन भारत जैसे विशालकाय देश के लिए केवल 2 स्तरों के माध्यम से सरकार चलाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं. Different type of people lives here. Their culture is different, their religion is different, as well as their language and ethnicity is also different. They also practices different type of customs, traditions, which make them diverse, and it is very difficult to rule them from one single level. Therefore, 2 tiers was added in our country, but after 1992, the third tier system arrangement was also started by our constitution. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. भारत के जो राज्य हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, इतने विशालकाय हैं, और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी इतना ज्यादा लोगों की जनसंख्या भी वहां है कि जिसे एक केवल स्टेट के द्वारा भी हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है. In terms of population, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. यदि हम आबादी को देखें तो रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश उससे भी ज्यादा पॉपुलेटेड है. उसी तरीके से महाराष्ट्र को यदि हम लोग देखते हैं तो जर्मनी जितना बड़ा है. और वैसे ही बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनली बहुत विविध प्रकार की अपने अंदर डाइवर्सिटीज को समेटे हुए हैं. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. इसलिए ऐसे राज्यों में पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है. जैसे हम लोगों ने सेंटर से पावर लिया और उसे स्टेट को दिया, उसी तरीके से स्टेट के पास भी जो पावर है उसको लेकर के हमें साझेदारी करनी है. किसके साथ? लोकल के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. इसलिए जो state government है उसके बाद भी, उसके अलावा भी एक उसके नीचे भी एक स्तर को स्टार्ट करना जरूरी हो गया. हमें महसूस होने लगा कि एक और टियर की अरेंजमेंट की आवश्यकता है. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called local government. जब इसकी जरूरत महसूस की गई तब हम लोगों ने क्या किया? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया,
जिसको कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। When power is taken away from the central and state governments, underline करो बेटा इसको, what is this? Decentralization. हम decentralization किसे कहते हैं? When power is taken away from central and state governments and given to local government, जब केंद्र और राज्यों के अधिकारों को ले लिया जाता है और उन्हें स्थानीय निकायों को जब वितरित कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, तो इसको ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, बॉयज की संख्या इतनी कम क्यों है? व्हाई बॉयज आर वेरी लेस इन नंबर? लड़कियां जब टॉप करती हैं और लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा अच्छा होता है तो कहते हैं सब कि हाँ गर्ल्स को ऐसे ही नंबर मिल जाता है, और क्लास करने के टाइम सब गायब हो जाते हैं, पता नहीं किस दुनिया में खो जाते हैं सब। केवल एक रविशंकर दिखाई दे रहा बस, बाकी आए भी थे, रवि प्रकाश है तो गायब है, वो अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया है। और बाकी बच्चे लड़के पता नहीं क्या करने लगते हैं, सब खाली पबजी खेलते हैं और सब क्या क्या करते हैं मोबाइल पर। पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते कि हाँ हाँ हमें क्लास करना है, और यहाँ पे सब नदारद हो जाते हैं। क्यों नहीं तुम लोग वीडियो ऑन कर रहे हो जी? अब तुम लोगों का लिस्ट केवल हम लोग वेट कर रहे हैं कि सारा न्यू लिस्ट निकाल लें, तो फिर कल से अब देखेंगे तो अटेंडेंस भी लेंगे। एकदम कंटिन्यू रखो, अब लापरवाही मत करो। सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम भी अगस्त चल ही रहा है, तुम्हें सोशल साइंस में और केवल 2 लेसन पढ़ने हैं, यानी कि कौन सा? एक एग्रीकल्चर और एक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का एक लेसन और एक लेसन ज्योग्राफी तो पढ़ा चुके हैं, केवल उसको रिवाइज करना है। अब यहाँ पर भी ये वाला लेसन हो जाता है तो 2 लेसन सिविक्स का हो जाएगा, 2 लेसन ज्योग्राफी का, 2 लेसन इकोनॉमिक्स का और 1 लेसन हिस्ट्री का। हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट। तो हम लोग चल रहे हैं, वी आर ऑन द वे एंड वी हैव टू कंप्लीट only and only 2 lessons which are remaining. You have to labor more. आपको मेहनत करना है, खुद से नोट्स तैयार करना है, खुद से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि टेस्ट आपका होगा और फाइनल में जो टोटल तुम्हारा सिलेबस है वो सारा आएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? ओके स्टूडेंट्स, when power is taken away from central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. The basic idea, यहाँ जो कहा जा रहा है कि बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, वो अब अंडरलाइन करो। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन? तो अंडरलाइन करो इसको। किसके मोबाइल से आवाज आ रहा है बेटा? चेक कर लो किसके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, उसको म्यूट करो, बंद करो। It is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जिन्हें हम स्थानीय स्तर पर ज्यादा अच्छे से सुलझा सकते हैं। उसको केंद्र किस हद तक ध्यान रख पाएगी? मान लो यदि हमारे पर्टिकुलर लोकल, यानी हमारा जिला क्या है? बलिया। यदि बलिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दिल्ली वाले कितना ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, कितनी निगरानी करेंगे, एक एक ग्राम पंचायत का कैसे ख्याल रख पाएंगे? तो इन सबके गतिविधियों को, इन सारी समस्याओं को यदि हम सही तरीके से सुलझाएं तो इसके लिए हमें लोकल बॉडीज को भी पावर देना होगा, और यही मोटो था हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को पावर देने का और डिसेंट्रलाइजेशन का। People have better knowledge of problems in their localities. लोगों को अपने इलाके में किस चीज की जरूरत है इसका ज्यादा अच्छे तरीके से आभास है। इसका भान उन्हें रहता है कि हमारे इलाके में बिजली की कमी है, कि हमारे इलाके में सड़क की कमी है, कि हमें विद्यालय की आवश्यकता है, कि हमें हॉस्पिटल चिकित्सालय की आवश्यकता, वो जानते हैं। बाहर के लोग केवल परफॉर्मर तैयार कर देंगे, कहीं भी कोई भी चीज इम्पोज कर देंगे, हो सकता है वहां पे उन लोगों को उसकी आवश्यकता ना हो। तो ये सब चीजें जो जरूरतें हैं लिमिटेड रिसोर्स में, वो वहां के लोकल पीपल ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच पॉपुलेटेड। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। उनके पास ये भी ज्यादा अच्छे विचार होंगे कि वो जो पैसा है
जो रिसोर्सेस उनके पास हैं उन्हें वो कहाँ खर्च करें, एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। और वो उन वस्तुओं को, ये क्या है, दीज आर द आइडियाज बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। एक एक पॉइंट इसको छांट लेना, अंडरलाइन कर लो, ये सारे उसी के आंसर हैं और इसको पॉइंट में तैयार कर लेना है, 5 पॉइंट बना लेना है। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making. और डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे लोगों को भी लगे कि हमारी भी भागीदारी है। किस लिए? कानून बनाने के लिए, व्यवस्थापिका के लिए, हमारे लिए क्या हो रहा है इसके अंदर हम भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस तरीके की जब भावना आएगी लोगों के बीच में तो उन्हें ज्यादा रुचि लगेगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा उन्हें, और वो ज्यादा इंथुसियाज्म से उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए ग्राम प्रधान का जब चुनाव करते हैं तो हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति होता है जिसको हम बहुत ही नजदीक से जानते हैं, वहां जा करके अपने सुख दुख को कह सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी गांव की समस्याओं को भली भांति समझ सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को अपने पार्टिसिपेशन का एहसास होने के लिए लोकल लेवल पर पावर्स दिए गए, जिसको कि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में जानते हैं। This helps to inculcate a habit of democratic participation. वही चीज जो हमने बताया, इससे क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी क्या भागीदारी है इसकी आदत उन्हें डाली जाए। ये सबसे निचला स्तर है और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेट लेवल आ जाएगा, फिर वहां विधायक बन के लोग जाने लगेंगे और फिर उसके और ऊपर चले जाएंगे तो लोकसभा में जाएंगे, जो सांसद बन के जाने लगेंगे। तो हमें इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होगा तभी तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको सबसे निचले स्तर पर, लोकल लेवल पर स्टार्ट कर दिया गया है और इसको मैंडेटरी भी कर दिया गया है। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. इसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस मतलब अपना शासन हम स्वयं चलाते हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन को एहसास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। The need for decentralization was recognized in our constitution. हमारे संविधान में इस चीज को महसूस किया गया। नीड मतलब जरूरत, क्या जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसकी जरूरत का एहसास हुआ हमारे संविधान में। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। पहले जो था ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 1992 यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इट बिकम मैंडेटरी to accept the local government in the every state by the every state governments. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. उस समय तक बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए जा चुके थे कि गांवों में, शहरों में कैसे हम पावर को दे, उन लोगों से काम कैसे करवाएं, क्या किया जाए तो ये सारे काम इफेक्टिव हो सकते हैं। तो पंचायत in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. सारे राज्यों में शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और गांवों के लिए विलेज पंचायत यानी कि जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। But these were directly under the control of the state government. Elections to these local, ये सब क्या है? These are the situation before the Constitutional Amendment of 1992. यानी कि यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992, तो ये वहां पर आंसर होगा। ठीक है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। क्या है कि जब हम 1992 के पहले की स्थिति देखेंगे तो क्या देखेंगे, सारे पावर किसके अंडर में थे, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट लोकल को पावर देगी कि नहीं देगी, कितने दिनों पर चुनाव कराएगी, वो वहीं पर उनके ऊपर डिपेंड करता था। किसी किसी राज्य में बहुत इफिशिएंटली वर्क होता था, किसी राज्य में बिल्कुल भी नहीं होता था, कहीं कहीं तो 10-10 वर्ष तक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता था। तो हर जगह ये जो रूल रेगुलेशंस थे ये सही नहीं। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस होते थे केवल नाम के लिए, कभी होता था कभी नहीं होता था। कब? 1992 के पहले। Local governments did not have any powers or resources of their own.
और जितने भी स्थानीय निकाय थे उनके पास अपने ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही उनके पास किसी भी तरीके के टैक्स जमा करने के अधिकार थे, जिसके वजह से वो उन पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। Thus, there was a very little decentralization in effective terms. इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन का रुख अपनाया गया था, यानी कि लोगों के पास ये बहुत ही अनइफेक्टिव वे में पहुंचती थी। लेकिन ये सारा चीज चेंज हो गया कब? आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दीपक यादव वीडियो रुक गया मैम। कहाँ तुम्हारा रुका वीडियो है? रुक गया बाकी मैम। बच्चों का नहीं रुका है। अपना म्यूट कर दो, कहाँ चली गई? म्यूट कर दो अपना। दीपक हेलो यहाँ से हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा है। इसीलिए रुक गया है। ओके, अब ठीक हो गया है इंटरनेट कनेक्शन। बच्चों को इधर लिस्ट में डालिए तो देखें कौन कौन से बच्चे हैं और कौन म्यूट किया अपना माइक, कौन अनम्यूट किया है। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो अब आएगा। कायदे से बोलो बेटा। पूरा ब्लैक हो गया है। अभी ठीक हो गया? आ रहा है कृष्णा? नो मैम, क्यों नहीं आ रहा है मैम? अच्छा तू बंद कर तो अपना म्यूट कर, माइक में आएगा। म्यूट करो कृष्णा। दीपक यादव भी म्यूट करो। नरेंद्र तुम भी म्यूट करो। ये कौन नरेंद्र मोदी अपना नाम डाला है जी? पूरा हीरो ही है। कौन है ये सर? थोड़ा इसको जाकर सर्च करवाइए तो ये बच्चा कौन है नीचे कमलेश सर से। देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी एक नाम डाल के रखा है, ये किसका नंबर है? नरेंद्र मोदी तो आज अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए थोड़ा टेस्ट कीजिए, नाम दीजिए। इन लोग का डिसिप्लिन में नंबर डिडक्टर है। यहाँ क्लास नहीं करने आते हैं, सब एंजॉय करने आते हैं। थोड़ा एंजॉयमेंट का हम लोग भी एंजॉयमेंट करें। देखिए ठीक, कहाँ गए? ओके ठीक है बेटा, लेट अस कंटिन्यू। अब आवाज आ रही है, वीडियो भी अब आ गया। अब सब आ जाएगा, अब सारा चीज हो जाएगा। A major step towards decentralization was taken in 1992. एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। कब? 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. और सेंट्रल तरीके से ही, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया गया। किस लिए? डेमोक्रेसी को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए। अब क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद? See, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. अब हर जगह के लिए अनिवार्य हो गया कि हर कोई अपने यहाँ क्या करवाएगा? इलेक्शंस हर 5 साल के बाद कराना जरूरी है। अमृतांश पांडे, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Second, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. अब हर राज्य के लिए जरूरी हो गया ये सारे अधिकार हर स्थानीय निकाय को दे दें, और हर स्थानीय निकाय में 5 वर्षों के बाद इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी। It became compulsory after 1992 to hold regular elections. हर 5 साल के बाद निरंतर चुनाव होने लगे और सीट्स जो थी उसको भी रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए?
एसटी के लिए भी, एससी के लिए भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोकल जो गवर्नमेंट में है ये बाद में लागू किया गया, इसीलिए यहाँ पर ओबीसी और वुमेन के लिए भी सीट जो है वो रिजर्व कर दिए गए। जबकि हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, विधानसभा के लिए केवल एसटी और एससी के लिए सीट्स रिजर्व है, वहां वुमेन के लिए सीट रिजर्व नहीं है। उसके लिए अभी तक डिमांड चल ही रहा है, लेकिन अभी तक सीट वहां 1/3 रिजर्व नहीं है। कहाँ रिजर्व है ये क्वेश्चन आता है बेटा, आपको ध्यान देना है। केवल लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। अनीश और संदेश बातचीत मत करो और तुम लोग म्यूट करो। तो मैं एक बार और बताइए क्या हम तो बता ही देंगे बेटा, बताने के लिए है मेरे लाल। थोड़ा तुम लोग भी धैर्य रखो और अननेसेसरी टॉकिंग मत करो। बंद करो, म्यूट करो, अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। ये संदेश कौन है? अभी जा करके नीचे से देखते हैं ये कौन है, इनके फादर का नाम क्या है और इनका घर कहाँ है। ठीक है, आप लोग एकदम ठीक ठाक रहिए। दिक्कत केवल मेरे पास तुम लोगों के लिए इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि तुम लोगों से परिचित नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में मेरा एक भी क्लास नहीं रहा। हाँ, हॉस्टलर्स जितने भी हैं इन लोगों को चूंकि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ाया हुआ है यहाँ पर बोर्डिंग में, तो इन लोगों के बारे में तो ठीक से सबके बारे में जानकारी है। लेकिन जो डेज बच्चे उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ऑफिस से जाके तुम्हारा सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि मेरे अच्छे अच्छे बच्चे कौन है, कहाँ से हैं और क्यों इस तरीके का काम करते रहते हैं। ठीक है, हम लोगों को भी जानने का हक है ना, तो थोड़ा सा सहयोग करो बेटा। वी नीड ऑल्सो योर कोऑपरेशन। आप कोऑपरेट करेंगे तभी हमारे क्लास भी अच्छे से चलेंगे और आपके भी साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आसानी से जैसे क्लास 9th से 10th में प्रमोट हुए ऐसे ही आराम से 10 से 11 में भी प्रमोट हो जाएंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू। थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। केवल लोकल गवर्नमेंट में है, इट इज नॉट इन द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। केवल लोकल बॉडीज में है कि महिलाओं के लिए सीट हर जगह आरक्षित कर दी गई है, ऑल पोजीशंस के लिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं पिछले साल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्लास 9th में। यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य का चुनाव आयोग, ये केवल राज्यों के लिए है और ये लोकल बॉडीज में इलेक्शंस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कौन है? तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत गांव के लिए और शहरों के लिए म्युनिसिपल इलेक्शंस, जिसमें म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों तरह की कैटेगरीज होती है। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. यहाँ देखो, अब रेवेन्यू के लिए भी इनको कह दिया गया है कि आप कुछ उनके पास भी पैसे आने दें ताकि इन लोगों के पास भी पैसे रहें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और जहाँ जरूरत पड़े। यस सर, पंकज सर बोलिए। Any message, sir? Pankaj, sir? Okay. Sir, also search about Sandesh. Who is Sandesh Parvat? Parvat is written or what is written? Who is this boy? Also search about him. Okay. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. बेटा, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर स्टेट अपने रेवेन्यू के पावर को जो शेयर करती है लोकल बॉडीज के साथ, वो अपने तरीके से करती है। कौन सा स्टेट कितना पावर देता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए कोई कंपल्शन है या ये मैंडेटरी है कि आपको इतना फंड
हर लोकल बॉडी को दे देना है। तो ये हर स्टेट का अपना अपना जैसा उनका इनकम है उसी हिसाब से वो ये शेयर भी करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। इसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन को ही हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। हर गांव में या जो गांव छोटे हैं जिसकी आबादी कम है तो कुछ गांवों को मिला करके वहां पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ये ग्राम पंचायत कैसे बनता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आल्सो, देयरफॉर अंडरलाइन हियर। दिस इज अ काउंसिल। व्हाट इज ग्राम पंचायत? अंडरलाइन करो। दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। आयुष, प्लीज ओपन योर what? Ayush, Amritans, open your video also. On your video. तो ये क्या है? ये एक परिषद है, काउंसिल है, जिसमें कि कई वार्ड मेंबर्स होते हैं जिसको कि हम पंच कहते हैं। वार्ड मेंबर्स, गांव को हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था कि डिफरेंट वार्ड्स में बांट दिए जाते हैं, शहरों को भी वार्ड्स में बांट दिया जाता है, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 लगा दिए जाते हैं और हर वार्ड के एक सदस्य जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ऐसे तो कई लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं लेकिन एक ही आदमी वहां से इलेक्टेड होता है तो उनको वार्ड मेंबर्स कहते हैं। और वार्ड मेंबर्स के साथ एक उनका हेड होता है जिसको हम लोग सरपंच कहते हैं या ग्राम प्रधान, विलेज हेडमैन भी कहते हैं। तो एक प्रेसिडेंट होता है वार्ड मेंबर्स के साथ जिसको हम सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। इनको कौन चुनता है? तो वो सारे लोग जो कि उस गांव के रहने वाले निवासी हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है, एडल्ट पॉपुलेशन। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज विच इज ग्राम पंचायत। स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। Students, is it clear? There is difference between ग्राम पंचायत and ग्राम सभा। क्यों? ग्राम सभा किसको कहते हैं, ग्राम पंचायत किसको कहते हैं? क्लियर है ना? क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ अंडरलाइन कीजिए आगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। हियर यू हैव टू अंडरलाइन कि व्हाट इज ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स, अब यहाँ से ग्राम सभा हो गया। ग्राम सभा किसको कहते हैं? ये ग्राम सभा हो गया और यहाँ नीचे जो थी वो ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया था। ग्राम पंचायत क्या है? इट इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। और ये वार्ड मेंबर्स और एक प्रेसिडेंट के साथ often called the पंच एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच। ये क्या हो गया? ये ग्राम पंचायत हो गया। और ग्राम सभा क्या है? ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। Whose member? The member of Gram Sabha. All the voters, that means all the people who are residing in that village who are above 18 years are the members of Gram Sabha. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. इसको साल में 2 से 3 बार मीटिंग करवानी, एकत्रित होनी है ताकि गांव की जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा किए जा सके। ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन ये हमारे यहाँ पर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हम ग्राम सभा बनाए हैं, ग्राम सभा के लोगों की अनुमति से ही वहाँ का एनुअल बजट भी पास होना चाहिए। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है और उनके सहमति से ही काम किया जाना चाहिए। The local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti or block or mandal. कई गांवों को एकत्रित करके मंडल बना दिया जाता है या ब्लॉक बना दिया जाता है जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. अब यहाँ का जो भी व्यक्ति है, जो हेड है, ब्लॉक प्रमुख जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कौन चुनता है? तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारे द्वारा चुने गए वार्ड मेंबर्स और
सरपंच या विलेज हेडमैन, ग्राम प्रधान, ये लोग मिल करके जो ब्लॉक प्रमुख है उसको चुनते हैं। The members of the representative body are elected by all the panchayat members in that areas. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला और district परिषद। और ये सारे ब्लॉक्स को मिला करके, सारे गांव को मिला के, कुछ कुछ गांवों को ग्रुप में करके कई मंडल बना दिए जाते हैं और ये सारे मंडल को मिला करके जिला परिषद बना दिया जाता है। और members of the Lok Sabha and MLA of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. जितने भी पंचायत के जो भी मेंबर्स थे, वार्ड मेंबर्स या सरपंच, ये सारे हर गांव के, उस जिला में जितने भी गांव हैं, प्लस जो भी ब्लॉक प्रमुख है वो लोग भी, प्लस उस जिला में जितने एमएलए एमपीज हैं, ये सब इसके सदस्य हो जाते हैं। किसके सदस्य? जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और उसका जो चेयरपर्सन है वही जिला परिषद का हेड होता है, जिसको हम लोग पार्षद भी कहते हैं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन द टाउन्स। शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था करवाई गई है। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े शहर है वहां पर नगर निगम की व्यवस्था है, जो छोटे शहर हैं वहां पर नगर पालिका की व्यवस्था यानी म्युनिसिपैलिटी, और यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies constituting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. Underline कीजिए यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी municipality हो या municipal corporations हो, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? Elected bodies constituting of people's representatives. जो people के representatives हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और municipal chairperson जो है वो पॉलिटिकल हेड है म्युनिसिपैलिटी का। और इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है उसको हम मेयर कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। The new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. हमारे यहाँ जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, उन्हीं की संख्या 36 लाख से अधिक है, जो कि किसी देश की तो आबादी के समान है। सोच लो कितना अच्छा हमारा डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, हाँ बेटा बस खत्म ही होने वाला है, टाइम भी ओवर हो रहा है, थोड़ा एक पैराग्राफ में पढ़ लें। Constitutional status for the local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. महिलाओं का भी भागीदारी इससे बढ़ा है और उनकी भी आवाज अब सामने आने लगी है। At the same time, there are many difficulties. अब यहाँ भी important है, what are the different difficulties faced by the local bodies? तो यहाँ पे underline करोगे इसको। While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. ग्राम सभा की मीटिंग नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती। पहला पॉइंट, most state governments have not transferred significant powers to the local government. हर राज्यों को अधिकार दे दिए गए हैं कि आप अपने शक्तियों का बंटवारा करें, लेकिन बहुत सारे राज्य सरकारों ने पर्याप्त शक्तियों को नहीं दिया है अभी तक लोकल बॉडीज को। Nor have they given adequate resources. बहुत सारे राज्यों ने रिसोर्स भी नहीं दिया है, उनके पास रेवेन्यू के भी पावर्स बहुत कम है, नहीं मिले हैं। We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. इस तरीके से हम लोग अभी भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार को चलाने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अभी प्रयासरत हैं। अभी हमें प्रयास करना है ताकि हम बहुत अच्छे से अपने लोकल गवर्नमेंट को चला सके। ओके, नाउ योर लेसन इज ओवर स्टूडेंट्स। व्हाट is your problem? What were you asking? I think Ravi Shankar was asking something. हाँ बेटा अब बोलिए, अब हम लोग फ्री हैं, चर्चा किया जाए। जैसे मैम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर ना, तो मैम वैसे ही पंचायत समिति का हेड कौन होता है? पंचायत समिति ब्लॉक प्रमुख। यस मैम।
ब्लॉक प्रमुख का नाम सुने हो ना? हेड ऑफ द, वीडियो है मैम, हाँ वीडियो है उसका हेड, डेविड। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये तो तुम्हारा एग्जाम दे करके आता है, जैसे वो सबके हम लोगों के जिला परिषद तो चुन करके गया ना, इलेक्टेड बॉडी हुआ, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख हम लोग चुन देते हैं, और जो वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ही इज द ऑफिसर हु इज देयर टू सजेस्ट द हेड ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का जो हेड है, चेयरपर्सन है, उसको हेल्प करने के लिए ये वीडियो होते हैं। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। यस स्टूडेंट, हु इज आस्किंग? अभी नो मैम वीडियो भी होते हैं ना, वीडियो का वर्क क्या होता है? वो तो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, वीडीओ। वो जो है वो सब ग्राम पंचायत के कामों को देख रेख करते हैं, और ग्राम का विकास कैसे होगा इसके लिए वो लोग भी क्या है, वो लोग भी एग्जाम दे करके आते हैं, वो इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, है ना? तो वो ग्राम प्रधान के साथ और पंचों के साथ। हाँ क्या बोल रहे हो? चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन हेड, अध्यक्ष। जो हेड हो गया वही ना अध्यक्षता करेगा, उसी को ना हम अध्यक्ष भी कहेंगे। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म, रीजनलिज्म। ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को कौन इंक्रीज करता है मैम? एक एक करके बोलो बाबू, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। हाँ क्या बोल रहे हो? एक रीजनलिज्म क्या बोल रहा है, एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव क्या बोल रहा है, दोनों एक ही साथ मिक्स हो गए हैं। कौन सा? रीजनलिज्म। रीजनल, रीजनलिज्म क्या है मैम? हाँ, रीजनल का मतलब क्या है? रीजनल मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र के, उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के हैं, तो उसी से रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता जिसको कहते हैं। हम साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन को हेल्प नहीं करेंगे, हम नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन को हेल्प नहीं करेंगे। जब इस तरीके की भावनाएं आ जाएंगी तो इसको क्षेत्रीयता कहेंगे, रीजनलिज्म। ठीक है, रीजन से रीजनलिज्म बना है, और यहाँ पर क्षेत्रवाद को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस लेसन। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ बेटा सुन लो, तुम्हारा जो भी समस्या है इस लेसन से रिलेटेड, कल को हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कहाँ 20 मिनट है? 5 मिनट होगा। हाँ बोलो, बोलो बेटा बोलो। एक मिनट है ना, तुरंत ओवर हो जाएगा। हाँ बोलो मैम। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको रेडी करके रखो, कल को बताएंगे, क्योंकि अभी टाइमिंग ओवर होने वाला है। दूसरे बच्चे का क्या डिमांड है? हाँ बोलो बेटा क्या है? मैम ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को कौन इंक्रीज करता है? ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव, मानव प्रतिनिधि। ये कहाँ से आ गए? हम लोग सब मानव ही हैं, हम लोग सब प्रतिनिधि ही हैं। कौन प्रतिनिधि? प्रतिनिधि का मतलब जिनको हम लोगों ने चुना, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए। ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव कहाँ आ रहा है? कौन? ह्यूमन कमीशन की बात हो रही है क्या? मानव आयोग की बात हो रही है? यहाँ हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अर्थपूर्ण तरीके से पूछो, जिसका मीनिंग निकले, सभी कोई को समझ में आया और अच्छा भी लगे। अननेसेसरी कुछ भी पूछ देने से अच्छा थोड़ी लगता है, तुम्हारा भी इंप्रेशन डाउन होगा, क्या फायदा। हाँ बोलो बेटा।